11 बजे रूम नंबर 63 पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली में संपन्न हुए। यहाँ पर जो बैलेट बॉक्स पार्लियामेंट में यूज़ किए गए उन्हें पहले खोला गया। उसके बाद क्रमवार जो स्टेट्स के बैलेट बॉक्सेस थे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको खोला गया और काउंटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कुल मिलाकर 4,754 वोट्स पोल हुए, जिसमें से 4,701 वोट्स वैलिड थे और 53 इनवैलिड थे। इसी के आधार पर कोटा तय किया गया, जिसकी संख्या थी 5,28,491। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को 2,824 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मिले, जिनकी वैल्यू थी 6,76,803। 1,877 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स श्री यशवंत सिन्हा जी को मिले, जिनकी वैल्यू थी 3,80,177। चूँकि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को रिक्विजिट कोटा से अधिक संख्या में वोट प्राप्त हुए, मैंने रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से ये ऐलान किया कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगली राष्ट्रपति होंगी। यह पूरी सूचना इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी फॉर्म नंबर 7 के जरिए, जिसके आधार पर सर्टिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ श्री द्रौपदी मुर्मू जी एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वुड बी डिक्लेयर्ड। द 16th presidential election 2022 has concluded with the declaration of result. The counting of votes commenced at 11 a.m. today, the 21st of July 2022, in room number 63 Parliament House, New Delhi. The ballot box used in the Parliament House was first opened, followed by that of states where members of Parliament had cast their votes. The ballot papers of members of legislative assemblies who voted at Parliament House were also segregated and kept separately. Thereafter, counting of votes cast by members of Parliament commenced, followed by the states in alphabetical order. During scrutiny, the valid and invalid ballot papers were separated and the value of first preference votes polled in favor of each candidate was determined. 4,754 votes were polled, out of which 4,701 were valid and 53 were invalid. The quota sufficient to get a candidate elected was determined by dividing the total number of first preference votes secured by both the candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The said quota was 5,28,491. Shrimati Draupadi Murmu had secured 2,824 first preference votes, value of which is 6,76,803. 2,824 first preference votes, the value of which is 6,76,803. 1,877 first preference votes were secured by Shri Yashwant Sinha, value of which is 3,80,177. As the first preference vote secured by Shrimati Draupadi Murmu was greater than the requisite quota, I, in my capacity as returning officer, declared that Shrimati Draupadi Murmu has been duly elected to the office of the President of India. Now, I will be forwarding to the Election Commission of India Form 7 under Rule 35(1)(c)
which is the return of election to the office of the President of India, and also a declaration of result of election under Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Elections Rules 1974. Election Commission of India would then prepare the certificate of election of Shri Draupadi Murmu as the President of India, jointly signed by Honorable Chief Election Commissioner of India Shri Rajiv Kumar and Honorable Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey. Overall, the 16th presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner in Parliament House and across all state capitals in the country. I would also like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. I would also like to convey my humble congratulations to Shrimati Draupadi Murmu, the President-elect. Thank you. देने के लिए देश की पहली आदिवासी महिला जो पहुंची है देश के सर्वोच्च स्तर तक, सर्वोच्च पद तक, उन्हें बधाई देने के लिए खुद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के निवास स्थान पर। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर द्रौपदी मुर्मू ने जो राजनीतिक सफर शुरू किया था उसको तय करते हुए वो पार्षद से ऊपर उठी, विधायक और उसके बाद राज्यपाल बनी और उसके बाद आज वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनी जा चुकी हैं। जीत हो गई है उनकी स्पष्ट। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त यहाँ द्रौपदी मुर्मू के निवास स्थान पर जो उन्हें आवंटित किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उन्हें बधाई देने के लिए। शैलेंद्र, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत दिखाता है कि किस तरीके से जमीन पर कार्य करने वाली एक महिला को सर्वोच्च पद मिला और ये पल वाकई अनूठा है। देश के प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं उन्हें बधाई देने। निश्चित तौर पर बनता और आज एक इतिहास बनता हुआ हम सब देख रहे हैं। आज एक इतिहास का गौरवशाली क्षण जब भारतीय लोकतंत्र में एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला को सर्वोच्च पद हासिल होने जा रहा है। और हम जानते हैं कि आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बधाई देने के लिए, साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। निश्चित तौर पर ये जो गौरवशाली क्षण है, आज जो गौरवशाली दिन है, पूरी दुनिया को भारत ने दिखाया है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है। हमारा जो सबसे विशाल लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र, दरअसल वो दुनिया को दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर सभी समुदाय के सभी वर्गों के हित का ध्यान रखा जाता है और किस तरह से आदिवासी समाज से आने वाली महिला सर्वोच्च पद तक पहुंचती है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और हम कुछ इतिहास बनते हुए दिन देख रहे हैं। देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आह्लादित करने वाली हैं, वो उत्साहित करने वाली हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जब राष्ट्रपति चुनाव के आंकड़े स्पष्ट हुए जिन्होंने ये दिखा दिया कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति हैं देश की बन रही हैं, उसके बाद पहली बार इन दृश्यों के माध्यम से द्रौपदी मुर्मू मीडिया के सामने आई हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्हें बधाई देने पहुंचे हैं। और जैसा कहा जाता है अभी तक वो बीजेपी की थी लेकिन अब वो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। निश्चित तौर पर वो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है और हम जानते हैं कि एक ऐसी राष्ट्रपति बनने जा रही है जो आदिवासी महिला समाज से आती है। और निश्चित तौर पर उस गौरवशाली क्षण को हम सब महसूस कर रहे हैं और पूरे देश में जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी दिखा रही हैं किस तरह से लोगों में उत्साह है। और हम देख रहे हैं कि तस्वीरों के जरिए
भारतीय संस्कृति है, जो आदिवासी संस्कृति है, उसकी भी झलक दिखती है। और ये दरअसल आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप देखें कि देश में पहली बार होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से भी आज हम देख रहे हैं कि सभी इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र में एक नया इतिहास रचा गया है। भारतीय लोकतंत्र ने दुनिया को दिखाया है इन तस्वीरों के माध्यम से, इस फैसले के माध्यम से, इस चुनाव के माध्यम से कि किस तरह से भारतीय लोकतंत्र की जड़ें दिनों दिन निरंतर गहरी होती जा रही है और मजबूत होती जा रही है। निश्चित तौर पर वो गौरवशाली क्षण, गौरवशाली दिन और इतिहास बनता हुआ हम सब देख रहे हैं। और उस इतिहास में जो तस्वीरें देश भर से आ रही है, वो भी ये दिखाती है कि भारतीय समाज में, भारतीय लोकतंत्र में किस तरह से सभी को समाहित करने के, सभी को आगे बढ़ाने के, सभी को उच्च पदों तक ले जाने की क्षमता है और सबका साथ मिलता है, सबका समर्थन मिलता है। और हमने देखा कि न केवल एनडीए उम्मीदवार के तौर पर बल्कि एनडीए से तक तमाम दलों ने खुलकर समर्थन किया द्रौपदी मुर्मू का। और यही ताकत है हमारे लोकतंत्र की, और यही ताकत है द्रौपदी मुर्मू जी के व्यक्तित्व की भी। हमारे साथ इस वक्त अशोक टंडन जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी, देश की अगली राष्ट्रपति हो रही है, बन रही है द्रौपदी मुर्मू। ऐसे में जिस तरीके से आंकड़े आए हैं और जिस तरीके से सूत्रों के ही लिहाज से, लेकिन जो बातें सामने निकल कर आई हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है, बहुत सारे अन्य दलों के विपक्ष के नेता भी या सांसद भी हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया। हम ये कह सकते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिस तरीके का समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिला है, वो दिखाता है कि किस तरह की शख्सियत और व्यक्तित्व द्रौपदी मुर्मू का है, जिसको आज सब ओर से समर्थन मिल रहा है। देखिए, उनकी जीत तो सुनिश्चित थी। इस चुनाव से पहले ये लगभग तय था कि एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जीतने वाले हैं, द्रौपदी जी। लेकिन ये मुझे बहुत सहज लगा कि यशवंत सिन्हा जी ने उनको बधाई दी है और अपनी हार मान ली। देखिए, यशवंत सिन्हा जी की हार तो उसी दिन सुनिश्चित हो गई थी जिस दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पर ये कहा था कि अगर हमें पहले पता होता कि द्रौपदी मुर्मू ही एनडीए के उम्मीदवार होने जा रहे हैं तो शायद हम अपना निर्णय बदलते। तो ये जो एक तथ्य सामने आया, इससे एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि विपक्ष ने जो अपनी एकजुटता का प्रमाण देने के लिए यशवंत सिन्हा जी को खड़ा किया था, वो एकजुटता तो इधर बिधर हो गई, तहस नहस हो गई। क्योंकि ममता बनर्जी के बयान के बाद लगातार हम देख रहे थे कितने ही क्षेत्रीय दल उनके समर्थन में आते गए और इसी कारण से उनकी जीत और ज़्यादा सुनिश्चित हो गई। मेरा मानना है कि उनको मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती है आज के दिन। और
द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। उनको पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हिंदुस्तान जैसे, भारत जैसे और राष्ट्र की सर्वोच्च पद पर नंबर 1 व्यक्तित्व बन करके उभर करके आई है। और मैं समझता हूँ ये देश जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उस स्वर्णिम भारत की ये कैसी आधारशिलाएं हैं, इसकी यदि कोई कल्पना करे तो आत्मविश्वास से भरेगा और भविष्य में हिंदुस्तान जिस ऊंचाइयों को छू रहा है, प्रगति कर रहा है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद से उठ करके राष्ट्रवाद पर और मानवतावाद पर खड़ा हो रहा है, ये इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है। द्रौपदी मुर्मू की जीत ये देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। देश के संविधान निर्माताओं ने जिस तरह से संविधान में सर्वसमावेशी विकास की बात की थी और आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 में सबको समानता के अधिकार की बात कही थी, आज इसको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक फैसला लिया। The 16th presidential election of India comes to a close with declaration of NDA's Draupadi Murmu as the next president of India. And joining us on Sansad TV right now is the Secretary General of Rajya Sabha, come the returning officer for the presidential election of 2022, Mr. PC Modi. So welcome to Sansad TV and thank you so much for joining us. It was a marathon day, started at 11 a.m. in the morning, continued till 9:30, and finally we have a historic development. We get the first tribal woman president of India. Your comment? At the outset, let me say that I am deeply honored and humbled to act as a returning officer to elect the President of India, the highest office in the country, in the largest democracy in the world. It has been an overwhelming experience, right from the time of filing of nominations till the conclusion of the election process by the declaration of result. The whole experience has been absolutely overwhelming, and I'm thankful to everyone who has been involved in this entire process to allow it to happen in a very fair and a smooth manner. Thank you. Thank you so much for speaking to us. Reporting from Parliament with camera person Jiten Negi and Pratim Mishra for Sansad Television. एक साधारण सी महिला को इतना उच्च स्थान भारत में मिला है और आदिवासी बहन वो राष्ट्रपति बन सकती है, ये है असली लोकतंत्र।
आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो हमारे जनजातीय समाज, आदिवासी भाई बहनों को और पूरे देश के 135 करोड़ लोगों को गौरवान्वित किया है, एक समाज को जो उच्च स्थान दिया, एक पूरे देश के हर वर्ग को आज ये महसूस होता है। वैसे तो संपूर्ण देश आज आनंद में डूबा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए आज आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है, नृत्य का दिन है। पूरा मध्य प्रदेश प्रसन्नता में डूबा हुआ है। जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मध्य प्रदेश पधारी थी, तब भी मध्य प्रदेश में उनका ऐतिहासिक और अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। एनडीए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं कि एक जनजातीय बहन को जो बहुत सक्षम है, योग्य है, समर्पित है, कर्मठ है, उनको राष्ट्रपति के लिए चुना और आज सौभाग्य से वो देश की राष्ट्रपति है। तो सबके लिए आनंद और उत्सव का दिन है। और आप देखिए मध्य प्रदेश में वैसे भी दलों की सीमाओं से उठ के भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई विधायक मित्रों ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ पर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया है। मैं सारे विधायक साथियों को जो बीजेपी के नहीं है लेकिन मुर्मू जी को वोट किया है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले तो पहली बार एक आदिवासी महिला का इस देश का राष्ट्रपति पद पर चुनना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम पूरे आदिवासी के जितने मंत्री हैं केंद्र में और संसद सदस्य हैं, ट्राइबल एमपीज एंड मिनिस्टर्स, हम लोगों का एक साथ यहाँ आकर के आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को हमने बधाइयाँ दी और साथ साथ में हमने अपना खुशी को भी इजहार किया कि हम कितने खुश हैं। साथ साथ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके सोच और उनके कोशिश के वजह से आज एक आदिवासी महिला इस देश का राष्ट्रपति के पद पर चुन ली गई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ आदिवासी समुदाय नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है कि एक आम महिला इस देश का राष्ट्रपति बन सकती है। ये मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो कमिटमेंट है, इसका एक नतीजा है। ये बहुत बड़ा संदेश भी जाता है।